Welcome, students. We have started our point, that is methods and principles of enzyme purification. Okay. In last lecture, we have studied about the dialysis method, and in dialysis method, we have discussed about the two processes which are included in the dialysis technique, that were differential centrifugation and density centrifugation. Okay. And in a differential means this dialysis process, in this method actually the proteins or the enzyme we want is not completely purified, isn't it? It's not completely purified. Here the molecules are separated on the basis of their density. Okay, when they reach their density on the gradient, they will stop migrating. So like that, the particles, or we can say organelles, were separated on the basis of the density. Okay, so this as we are looking the techniques, that purification of enzyme on the basis of different criteria are there. So our first, we have started the molecular size, or we can say molecular weight. In that, we first saw the dialysis. Now let's see the second method, that is size exclusion chromatography, or gel filtration chromatography, or gel permeation chromatography. There are different names for this chromatography technique. Okay, so I think in previous video we have shown the introduction of this gel filtration chromatography. Even we have discussed about the components, and yes, we have discussed about the components and general introduction about the chromatography. As chromatography, it is the purification technique, or you can say it is the separation technique. Okay, so we have started the introduction about the this sec, or we have also discussed the components of sec. Let's come to the point now directly, that is principle, method, or we can say process of sec. Okay, on what basis this here particles are being separated, that we are going to see. Now see, gel filtration chromatography, first of all, it is used for the purification of enzyme or purification of protein. Okay, here the principle is mainly depend on, means here particles are separated on the basis of size, so it is known as the size exclusion chromatography. Okay, and rarely it is particles are also separated on the basis of the molecular mass. Size and molecular mass is somewhat similar. Okay, so according to the molecular mass of protein, we separate our enzyme or protein molecule. Okay, so that is all about this. Now see, the question here, it is like that, see, in this chapter we are going to see different methods. Definitely chromatography के हम अलग अलग methods देखने वाले हैं. Secondly, we are going to see the electrophoresis SDS page. So see, this SDS page is also used for the protein separation. Okay, main aim SDS page का ये होता है. SDS page क्या है, उसका full form क्या है, ये detail concept हम देखने वाले हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम we are going to see the detail, all the detail processes. But let me give you idea, this SDS page is also used for the separation of protein, and this gel filtration chromatography is also used for the protein separation. तो protein separation के लिए बहुत से techniques हैं. ओके, तो हम SDS पेज के जरिए भी प्रोटीन अपना सेपरेट आउट कर सकते हैं. एज वी विल सी द डिफरेंट मेथड्स विल कम टू नो. ओके, so principle of this size exclusion chromatography is very simple, that here two phases are there, stationary phase and mobile phase. As I told you in earlier video, mobile phase is the momentary phase, मतलब जो हमारा जो हमारा सोल्यूशन होता है, या जिसमें हमारा एंजाइम प्रेजेंट है. ओके, सोल्यूशन कंटेनिंग आवर enzyme of interest is present in that mobile phase.
और स्टेशनरी फेज ये कांस्टेंट फेज होती है जो मूव नहीं हो सकती, और मोबाइल फेज ये मूव हो सकती है. सो वी पुट अप आवर मोबाइल फेज ऑन टू द स्टेशनरी फेज एंड देन दिस स्टेशनरी फेज इज प्लेस्ड इनटू द कॉलम. ओके, तो यहाँ का इसका एक प्रिंसिपल मेन है कि यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स दिस आर इल्यूटेड फर्स्ट, देन intermediate size molecules are eluted, and then very tiny or very small molecules are eluted outside. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स पहले इल्यूट होंगे, देन मीडियम साइज, एंड then we can say very small size, or we can say very fine size. Okay, so that is the main principle of this size exclusion chromatography. Let's talk about the stationary phase, how stationary phase is been created, or how stationary phase is been made. Now stationary phase is what, like we can say stationary means stagnant. Okay, जहाँ पर आप मोबाइल फेज डालेंगे, इट इज मेड अप ऑफ बीड्स. जनरली यहाँ पर स्टेशनरी फेज बनती है बीड्स से. ओके, और वो यहाँ पर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में बीड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हाट आर बीड्स? दिस बीड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर. ओके, polymer, these are made up of monomer. Okay, monomer these are interlinked with each other and they form the polymer. So these beads which are circular in shape, these are made up of the polymer. और ये beads कॉलम में अरेंज किए जाते हैं, मतलब वो स्टेशनरी फेज उससे तैयार की जाती है, बीड्स अरेंज किए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम इज बीन क्रिएटेड. ओके, तो यहाँ पर बीड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन बेस्ड ऑन द साइज. ओके, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स. आप बीड्स से ही क्या बनाते हैं? आपकी स्टेशनरी फेज बनाते हैं. ओके, यू क्रिएट द स्टेशनरी फेज विद द हेल्प ऑफ द बीड्स. सो एग्जाम्पल ऑफ बीड्स यूज्ड इन दिस जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आर डेक्स्ट्रेन, like example है सिफेडिक्स. ओके, पॉलीअक्राइल अमाइड, एनीथिंग यू कैन यूज. ओके, नाउ यहाँ पर अगर मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँगी ऑफ द बीड्स, डेक्स्ट्रेन का भी यहाँ पर डेक्स्ट्रेन दिया है, डेक्स्ट्रेन में ही सिफेडिक्स है. ओके, सो सिफेडिक्स का अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँगी तो सिफेडिक्स G50 और सिफेडिक्स G75 और सिफेडिक्स ऐसे नंबर्स होते हैं. ओके, G50 इट्स नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड, बट आई एम टेलिंग यू दैट सिफेडिक्स G50, सिफेडिक्स G75 ऐसे नंबर्स होते हैं. क्या इंडिकेट करते हैं ये नंबर्स? दिस नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सिफेडिक्स से ही आपके बीड्स बनते हैं, और जो डिसाइड करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स इल्यूट होंगे और कौन से पार्टिकल्स उस बीड्स में ट्रैप होंगे. ओके, तो G50 या फिर G75 ये नंबर इंडिकेट करता है. अब मैं आपको पहले 50 का बता दूं. G50 इट इंडिकेट्स दैट 50 किलो डाल्टन अबव साइज प्रोटीन आर इल्यूटेड और आर पास आउट. ओके, बट दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द रेजिन. समझ रहे? मतलब वो क्या होता है, दिस आर बीन इल्यूटेड लेकिन वो रेजिन में एब्जॉर्ब नहीं होते, दैट इज द G50. एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं. सपोज प्रोटीन की रेंज वो सॉरी बीड साइज की रेंज है 0 to 700. ओके, आई एम टेलिंग यू जस्ट अबाउट द बीड्स, स्टिल वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोसेस. ओके, एक्चुअली ये प्रोसेस ही बीड्स के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अभी सपोज एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपको समझा दूँ. सपोज सिफेडिक्स रेंज 0 to 700 है, मतलब क्या इंडिकेट करता है? 0 to 700 मीन्स वॉट? इट इंडिकेट्स दैट below 700 Dalton molecular weight can enter the bead. ओके, वो बीड में एंटर हो सकते, ट्रैप हो सकते, लेकिन अगर 700 से ज़्यादा उसका वेट होगा तो वो क्या होंगे? अबाउ 700 दे कांट एंटर द बीड. वो बीड में एंटर नहीं होंगे, दे विल बी पास आउट. ओके, बड़े साइज के डेफिनेटली, उसकी साइज नहीं है तो वो पास आउट होंगे, लेकिन उसकी साइज है तो दे आर गोइंग टू ट्रैप इनसाइड दैट. सो दैट इज बिन देयर. एक और मैं एग्जांपल बता दूं तो सिफेडिक्स 25 भी है. सिफेडिक्स 25 उनकी रेंज है 1 to 5. मतलब क्या है?
मीन्स वॉट इट, ये सिफैडिक्स जो 25 है, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पर 1 to 5 के बीच में जिनका मॉलिक्यूलर वेट है वही वहाँ पर ट्रैप हो गए, अदर विल पास आउट. सो यहाँ पर बीड की साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेशनरी फेज. एंड यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, सॉफ्ट जेल, सेमी रिजिड. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट योर स्टेशनरी फेज is made up of the beads, and beads are very important. Why? Because in these beads your protein according to the size get trapped and are eluted outside. Okay, so beads are made up of there are different types of beads like Cipadix 25, Cipadix 75, ranging between 0 to 700. ऐसे different examples है beads के. ओके, अगर एक एग्जांपल है 50 किलो डाल्टन, तो उतने 50 किलो डाल्टन अबव जो साइज है 50 किलो डाल्टन की वो पास आउट हो गए, लेकिन जो 50 किलो डाल्टन से कम होंगे दे विल गेट ट्रैप, जो 50 किलो डाल्टन से ज़्यादा होंगे दे विल इल्यूट आउट. So this is just main principle behind this stationary phase. Okay, next is your mobile phase. मोबाइल फेज, अभी यहाँ मोबाइल फेज एक्चुअली जनरली लिक्विड होता है या फिर गैस होता है. इन दिस केस योर लिक्विड इज देयर. मोबाइल फेज इज दैट योर लिक्विड सोल्यूशन कंटेन योर इंटरेस्ट ऑफ एंजाइम और एंजाइम ऑफ इंटरेस्ट वी कैन से. तो ये मोबाइल फेज एक तो बफर से बनी हुई होती है और सिंपल वाटर सोल्यूशन इज देयर. बफर, बिकॉज बफर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो आइसोटोनिक होता है. देयर इज इट्स एक्चुअली उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट या कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होते हैं. सो यू यूज़ अ बफर, मतलब आपके अगर उस सॉल्यूशन आप डालते हो उस बफर में या फिर उस मोबाइल फेज के जार में, तो there will be no any change in the biochemical properties of the enzyme. Okay, so this mobile phase is all about that. And now solvent selection is there. Solvent selection and mobile phase preparation. See, this are actually ये जो है मैंने इस slides में जो बताया, solvent selection, mobile phase preparation, then sample preparation, these are very you can say very deep methods विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर थियोरिटिकल मैनर. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूँ. प्रैक्टिकली बस ये जो डायग्राम है वो आप एक बार समझ लीजिए, जो प्रोसेस है. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सी डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे, कंसिडर दैट योर मोबाइल फेज जार इज देयर. ओके, मोबाइल फेज में आपका जो सॉल्यूशन है विच कंटेन्स योर एंजाइम वो आपको प्यूरिफाई करना है. तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट दैट मोबाइल फेज ऑन टू द स्टेशनरी फेज. जो आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा है यहाँ पर, दैट फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ द योर वी कैन से स्टेशनरी फेज, जो सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है. दिस आर दी बीड्स. ओके, विच आर बीन शोन इन दी सर्कुलर फॉर्म, तो वो है बीड्स. ओके, अभी आपने ऊपर से क्या डाली है, स्टेशनरी फेज में ऊपर से आपने डाली है मोबाइल फेज. मोबाइल फेज में मिक्सचर ऑफ सैंपल है, लार्ज प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है, इंटरमीडिएट प्रोटीन है, फाइन प्रोटीन है, डिफरेंट साइज के प्रोटीन से. ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ समय बाद यू विल सी दैट दिस प्रोटीन, नाउ विल कम टू द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में क्या है, ओके, बिफोर गोइंग टू द सेकेंड कॉलम लेट मी टेल. अब क्या होगा, जो लास्ट साइज के प्रोटीन है, ओके, अब ये जो बीट्स यहाँ पर है ये बीट्स अलग अलग साइज के होंगे. ऐसा नहीं कि सब बीट्स की साइज एक ही होगी. कुछ का जो पोर साइज है वो स्मॉल होगी, कुछ की पोर साइज लार्ज होगी, कुछ की पोर साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. ओके, तो ये जो बीट्स जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं ये बीट्स अलग अलग साइज के होंगे. और देखिए बीट्स एक दूसरे से फर्मली अटैच है और बीच में थोड़ा सा फ्री स्पेस है. ओके, फ्री स्पेस इज ऑल्सो बीन देयर. ओके, दैट फ्री एरिया आप उसको डेनोट करेंगे. फ्री एरिया जो है उसे आप डेनोट करोगे V0 से. गेटिंग माई पॉइंट, जो फ्री एरिया है उसको डेनोट करोगे आप V0 से, जो वॉइड वॉल्यूम है. ठीक है, जहाँ पर बीट्स है उसको आप डेनोट करोगे VG से. V कैपिटल G, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बीट्स. ओके, V0 फ्री एरिया, मतलब बीट्स के बीच में जो फ्री एरिया है वो है आपका V0. जो बीट्स का वॉल्यूम है वो है आपका VG.
ओके। और उसके बाद जो मोबाइल फेज ऊपर से आ रही है, ओके, जो मोबाइल फेज ऊपर से डल रही है उसको आप कहेंगे VR, दैट इज द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द मोबाइल फेज। और इन तीनों को मिलाकर VG, V0, VR, इन तीनों को मिलाकर आपका बनता है VT, दैट इज द टोटल वॉल्यूम। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, mathematical part is somewhat complicated, it's not that much important here, just you have to purify the एंजाइम, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू जो बेसिक था। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने जैसे कि कहा ये जो बीड्स है ये अलग अलग साइज के बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पोर साइज है उनकी बनी हुई, मतलब उनकी पोर साइज अलग अलग है, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है इल्यूट करने की वो अलग अलग है, कुछ 25 के हो गए, कुछ 75 के हो गए, डिपेंड, उनकी साइज अलग अलग होगी। तो होगा क्या यहाँ पर, वंस द प्रोसेस इज बिन स्टार्टेड, जो लार्ज साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो फास्टली इल्यूट हो गए, ओके, वो फास्टली बाहर आ जाएंगे, दे विल इल्यूट आउट वेरी फास्टली, दे विल नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट बिट्स because that protein size is smaller, the molecular weight of that protein the molecular weight of that protein is larger, so it will not get trapped into that smaller bits. But if the size is similar to that, the pore size of the bit, definitely they are going to trap, but if they are larger they will elute out first, okay। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट होंगे वो वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, वहाँ पर वो फंस जाएंगे, वहाँ पर मतलब पोर साइज में वो जो बीट्स की पोर साइज है वहाँ पर वो फंस जाएंगे, ओके, दे विल गेट ट्रैप्ड इनटू दैट पोर साइज ऑफ द बीट्स, ओके। देन इफ अगर प्रोटीन का जो साइज है वो आपके फ्री स्पेस के साइज के हिसाब से है, तो वो वहाँ पर फ्री स्पेस में कुछ प्रोटीन ट्रैप हो जाएंगे। तो गेटिंग माई पॉइंट, मतलब अगर पोर साइज आपकी प्रोटीन की मतलब प्रोटीन की अगर साइज बीट्स के पोर साइज के इक्वल है या फिर छोटी है तो वो ट्रैप हो जाएगी, लेकिन बड़ी है तो वो इल्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे 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 करके आपके प्रोटीन्स एक डिफरेंट बॉटल में, जो लास्ट बॉटल आप देख रहे हो वहाँ पर क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, ओके। तो 3 बॉटल्स अलग अलग दिखाइए, तो लार्जर प्रोटीन विल गेट कलेक्टेड फर्स्ट, सो डेफिनेटली उनकी एक अलग बॉटल में वो कलेक्ट होगी, देन मीडियम साइज एंड देन स्मॉल साइज, ओके। और जो आपको 3 वेसल में अलग अलग साइज के प्रोटीन मिले हैं, यू विल वॉश दैट विद मीन्स दैट प्रोटीन विल बी वॉश्ड विद द बफर सॉल्यूशन, ओके, सो दैट उनका कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो पाता। तो यही एक प्रोसेस है, यहाँ पर प्रिंसिपल ये है कि कैसे पार्टिकल सेपरेट होते हैं, कैसे होते हैं, लार्ज विल सेपरेट फर्स्ट, देन मीडियम एंड देन स्मॉल। फिर आप प्रोसेस में क्या लिखेंगे, बीट्स का एक क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, फिर स्टेशनरी फेज कैसे बनती है, मोबाइल फेज कैसे बनती है वो आप मेंशन करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स है जो मेंशन करने जैसे है, मेनली बीट्स का पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड द डायग्राम, ओके। और ये जो सॉल्वेंट सिलेक्शन है, अगेन मोबाइल फेज प्रिपरेशन है, सो दिस आर ऑल वेरी वी कैन से वेरी कॉमन जो थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो था प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। वंस यू हैव अंडरस्टैंड द प्रोसेस, you can even you can write all the notes or you can create the notes by mind also. This was all about the gel filtration chromatography or size exclusion chromatography, in which beads play very important role for the separation of the proteins और वी कैन से फॉर द प्योरिटी ऑफ द प्रोटीन्स। देखिए आपको तीनों, आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको तीनों जो कॉलम्स है उसमें आपको अलग अलग साइज के प्रोटीन मिले हैं, ओके। तो आपका यहाँ पर प्रोटीन प्यूरिफाई हो चुका है, एंड फॉर डिटेक्शन डिफरेंट मेथड्स आर बीन यूज्ड। सो दिस इज ऑल वी कैन से रोबोस्टिक मेथड है या फिर मैकेनिकल मेथड है, एंड इवन यू कैन परफॉर्म इन लैबोरेटरी in lab level also. So this was all about the gel filtration chromatography. Thank you.